Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss more questions of exercise 2.1 chapter fraction and decimal of class 7. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे. We have already discussed question number 1 to 4 in previous videos. Now we will proceed question number 5, 6, 7 and 8. Now let us start from question number 5. Question number 5 is saying that find the perimeters of triangle ABE. We need to find the perimeter of triangle ABE and the rectangle BCDE in this figure. इस फिगर में हमें इन दोनों का पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल BCDE एंड whose perimeter is greater. और उसके बाद ये भी बताना है you need to find which perimeter is greater. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, किसका पेरीमीटर ज्यादा. ठीक है, whose perimeter is greater. तो observe this figure. Triangle AB is this ABE, in which AB is 5 by 2, A is 3 whole 3 by 5 and BE is 2 whole 3 by 4. Clear? In this rectangle the length is BE and breadth is DE. ठीक है. Now solution देखते हैं. Need to check the solution. Perimeter of triangle AB. Triangle perimeter क्या होता है? Perimeter is the sum of all the sides. ठीक है, perimeter क्या होता है? Sum of all the sides. तो हम सभी sides का sum कर देंगे. ठीक है, sum of all sides. This is called perimeter. Therefore ABE triangle का जो perimeter होगा वो कितना होगा? AB plus AE plus B. AB कितना है? Observe this AB 5 by 2 5 by 2. ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 5 by 2. Similarly A is 3 whole 3 by 5 and BE is 2 whole 3 by 4. Now 3 whole 3 by 5. This is a mixed fraction. We need to convert this fraction into improper. Improper fraction में कैसे convert करेंगे? Denominator को हम multiply करेंगे क्वोशेंट से 3 से और इसमें 3 ऐड कर देंगे. डिनोमिनेटर एज इट इज 5 रहेगा. 5 into 3 is 15. 15 plus 3 18. This is 18 by 5. Is it clear? Like this we will convert these fractions. So convert this fraction into proper fraction. Improper fraction we will get 18 by 5 and while convert 2 whole 3 by 4 we will get 11 by 4. Clear? Now take the LCM of 2, 5 and 4. 2, 5 and 4. By taking LCM of 2, 5 and 4 we get 20. Divide by 2. 2 into 1 is 2. 5 cannot be divided by 2. 4 को हम 2 से divide करेंगे. 2 into 2 is 4. Again we need to divide it by 2. 2 into 1 is 2. Now divide by 5. 5 into 1 is 5. Now 2 into 2 is 4. Now 4 into 5 is 20. And 20 is the LCM. ठीक है, 20 हमने LCM लिखा है यहाँ पे. Now divide 20 by 4 2. 20 को हम 2 से डिवाइड करते हैं we get 10. 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, that is 5. Clear? Similarly 20 divided by 5 we get 4. 4 multiplied by 18. Clear? Similarly 20 divided by 4. 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा. 5 multiplied by 11 we get 10 into 5 plus 4 into 18 plus 5 into 11 like this. Clear? Now after adding these terms, multiplying these terms, we get 50 plus 72 plus 55 by 20. 50 plus 72 plus 55 we get 177 divided by 20. Now after dividing 177 by 20 to convert it into mixed fraction we get 20 into 8 is 160. Now after subtracting we get 17. 17 is the remainder. ये remainder आ गया हमारे पास. तो 17 8 whole 17 by 20 centimeter is the answer of first part, that is perimeter of triangle ABE. ये perimeter आ गया हमारे पास triangle ABE का. ये first part का हमारा answer आ चुका है. Is it clear? Now second part is saying that perimeter of rectangle BCDE. ठीक है ना, formula of perimeter of rectangle. rectangle का जो perimeter होता है उसका formula होता है 2 into L plus B. L means length and B means breadth. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 into length plus breadth. Okay. Now length कितना था उसमें हमने देखा था. लेंथ हमारा 2 whole 3 by 4 and breadth is 7 by 6. एक बार फिर से आप ऑब्जर्व कर लो यहाँ पे. ठीक है,
length is BE, that is 2 whole 3 by 4, and breadth is 7 by 6. Clear? Similarly, convert 2 whole 3 by 4 into 2 whole 3 by 4 को जब हमने कन्वर्ट किया मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वी गेट 11 by 4. 11 by 4 plus 7 by 6. Now take the LCM of 4 and 6. 4 and 6 को जब हम LCM लेंगे तो कितना आएगा? 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 2 into 1 is 2, 3. तो LCM आया 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12. Okay, 12 is the LCM. Now divide 12 by 4, we get 3. 3 multiplied by 11. 3 multiplied by 11 plus 12 divided by 6, we get 2. 2 multiplied by 7 numerator. 11 into 3 is 33. 11 into 3 is 33, and 2 into 7 is 14. That is 33 plus 17, 14 upon 12. ठीक है, we get 2 into 33 plus 14 by 12. ठीक है, now 2 into यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 into 47 by 12. ठीक है, क्लियरली 12 and 2 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं. 2 into 1 is 2, 2 into 6 is 12. We get 47 by 6. 47 by 6. Now convert 47 by 6 into improper fraction, sorry mixed fraction. We get 6 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, we get 6 into 7 is 42, remainder is 5. Okay, we get 7 whole 5 by 6 centimeter. This is the answer of part second. Now one more question is there. Whose perimeter is greater? किसका perimeter ज्यादा है, ये भी पूछा गया है ना. Compare the perimeter of triangle ABE and rectangle BCDE. दोनों का पेरीमीटर हम कंपेयर करते हैं. तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना था, एक बार देखते हैं फिर से. ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आया था हमारा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 8 whole 17 by 20. Perimeter of triangle is 8 whole 17 by 20, and perimeter of rectangle is 7 whole 5 by 6. Now observe this fraction and whose perimeter is greater. इन दोनों को ऑब्जर्व करो. देखो फ्रैक्शनल पार्ट को हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे होल पार्ट ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ होल पार्ट देखते हैं तो 8 है और यहाँ 7 है. 8 हमें साफ साफ पता है कि 7 से बड़ा होता है. इट मीन जब होल पार्ट इसका बड़ा है 7 से, तो यही फ्रैक्शन कैसी बड़ी, मीन्स 8 whole 17 by 20 is greater than 7 whole 5 by 6. Therefore we can say that perimeter of triangle ABE is greater than perimeter of rectangle. इट क्लियर? एक आंसर हमारा ये आ गया. क्लियर है सभी को? Now proceed to question number 6. Yes, proceed to question number 6. Question number 6 is saying that Salil wants to put a picture in a frame. Salil जो है एक फ्रेम में एक पिक्चर लगाना चाहता है. ठीक है, the picture is this centimeter wide. पिक्चर जो है 7 whole 3 by 5 centimeter wide. ठीक है, उसकी width है ये. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 whole 3 by 10 centimeter. फ्रेम में फिट करने के लिए पिक्चर की जो विड्थ है वो इतने सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए. ना हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड. तो पिक्चर को कितना ट्रिम करना है, छोटा करना है, ये हमें फाइंड करना. तो हम क्या करेंगे, देखो पिक्चर की लेंथ इतनी है, इतना होना चाहिए, तो हम इसमें से इसे इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो विड्थ आ जाएगी जितना उसे हमें ट्रिम करना है, छोटा करना है कट करके. ठीक है, तो विड्थ ऑफ द पिक्चर, पिक्चर का विड्थ कितना है यहाँ पे गिवन है 7 whole 3 by 5. विड्थ ऑफ फ्रेम, फ्रेम का विड्थ कितना है 7 whole 3 by 10.
सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, कितना पिक्चर कितना लेंथ जो हमें ट्रिम करना है, छोटा करना है उसे, तो क्या करेंगे, विड्थ ऑफ पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ फ्रेम, पिक्चर में से विड्थ ऑफ फ्रेम माइनस कर देंगे, दैट इज 7 होल 3/5 माइनस 7 होल 3/10। क्लियर? तो माइनस करते हैं, पहले से हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 इंटू 7 इज 35, 35 प्लस 3, 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 3 38, 38 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? माइनस 7 इंटू 10 इज 70, 70 प्लस 3 इज 73, 73 बाय 10। Now take the LCM of 5 and 10, 5 और 10 का हम LCM लेते हैं। देखो 5 and 10, ठीक है, 5 के टेबल में 10 आता है तो इसका LCM भी 10 ही आएगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10। क्लियर? तो 5 इंटू 2 कितना आ गया हमारे पास, 10। दिस इज द LCM। LCM हमने यहाँ लिखा। डिवाइड LCM दैट इज 10 बाई 5, 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2 वी गेट 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 38, 2 को हम 38 में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 वी गेट 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 73, 1 को 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ना 38 इंटू 2, 38 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, 76, 76 minus 73 divided by 10, we get 76 minus 73 is 3, that is 3 by 10 centimeter. This is your required answer. Clear? ठीक है, पूरा पार्ट करके दिखाया। ठीक है, now proceed to क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Yes, proceed to question number 7. Question number 7 is saying that Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. रितु जो है किसी एप्पल का, एक एप्पल का, एन एप्पल लिखा है यहाँ पे, मीन्स 1 एप्पल, यहाँ पे कितना कह रहा है, 1 एप्पल, एक एप्पल का इतना पार्ट वो जो है खाती है रितु, एंड द रिमेनिंग पार्ट वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और उसका भाई कितना खाता है, बचा हुआ उसका भाई खाता है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट्स, सोमू ने कितना पार्ट इट मीन्स खाया। हु हैड द लार्जर शेयर, किसका शेयर ज्यादा था, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा था। ठीक है, वी नीड टू फाइंड थ्री आंसर्स, यहाँ पे हमें 3 आंसर फाइंड करने हैं। फर्स्ट इज सोमू ने कितना ईट किया, सोमू ने कितना खाया। सेकंड इज whose share is larger, and third one is by how much, कितना ज्यादा। क्लियर? तो देखते हैं एक बार। पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय रितु, रितु ने कितना पार्ट ईट किया, 3/5, एप्पल कितना था 1, 1 में से 3/5 वो खा चुकी है ना। पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू, सोमू ने कितना खाया, 1 में से हम माइनस कर देंगे 3/5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 3/5। ठीक है, क्लियरली टेक द एलसीएम ऑफ, यहाँ पे 1 का जब डिनोमिनेटर देखेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आया, 5 को 1 से डिवाइड किया, 1, 1 की 5 में 1 की मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 इज 5, 5 minus 3 is 2, 2/5 means 2/5 part is eaten by Somu, सोमू ने 2/5 एप्पल जो है खाया। क्लियर? ना कंपेयर द पार्ट्स ईटन बाय बोथ ऑफ देम। ठीक है, आपने देखो यहाँ पे देखा रितु कितना खा रही है, 3/5, सोमू 2/5। ठीक है, एक पार्ट हमारा ये आ गया, सोमू ने इतना खाया। कंपेयर करते हैं तो क्लियर देखो यहाँ पे दोनों बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस, 5 डिनोमिनेटर दोनों का 5 है, 3 is greater than 2, 3 2 से बड़ा है, therefore 3/5 is greater than 2/5। तो 3/5 किसने खाया था, ये रितु ने, therefore रितु's share is larger than सोमू, रितु का शेयर सोमू से ज्यादा। कितना ज्यादा है, by how much, तो क्या करेंगे हम, 3/5 में 2/5 माइनस कर देंगे, 3/5 माइनस 2/5। ठीक है, सिंस डिनोमिनेटर्स आर सेम, लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर हम एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 minus 2 is 1, that is 1/5। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। क्लियर? रितु का पार्ट ज्यादा है, सोमू से कितना ज्यादा है, 1/5 पार्ट। ओके, क्लियर है? नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक बार। यस, प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is saying that wait,
माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7 by 12 आवर्स। माइकल किसी पिक्चर को कलर कर रहा है और वो उसे कितने समय में कलर कर लेता है, 7 by 12 आवर्स में उसे वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3 by 4 आवर्स। वैभव इतने समय में करता है, माइकल इतने टाइम लेता है। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज्यादा देर तक काम किया। बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और कितनी ज्यादा देर तक काम किया। ठीक है, दूसरे से। तो पहले देखते हैं माइकल ने कितना काम किया, माइकल ने कितना टाइम लिया। टाइम टेकन बाय माइकल, टाइम टेकन बाय माइकल इज 7 by 12 आवर्स। क्लियर। सिमिलरली टाइम टेकन बाय वैभव, वैभव ने कितना टाइम लिया, 3 by 4 आवर्स। ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट में कहता है हु वर्कड लॉन्गर, हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज्यादा देर तक काम किया। मीन्स सबसे पहले हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर द टाइम टेकन बाय बोथ, दोनों को हम कंपेयर करते हैं 7 by 12, और सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास 3 by 4। टेक द एलसीएम ऑफ 12 and 4, 12 and 4 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो कितना आएगा हमारे पास, वी गेट 3 into 4 is 12, 2 into 2 is 4। तो एलसीएम आया हमारे पास 3 into 2 is 6, 6 into 2 is 12, 12 एलसीएम आया। ठीक है। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी 12 बना हुआ है, 7 by 12। हमें इस वाली फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बाय व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई बाय 4 टू मेक इट 12। सिमिलरली वी गेट, सॉरी, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 3, 3 को भी हम न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंस करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें तभी मिलेगी। तो ये कितना हो गया, implies that 7 by 12 and this one is 3 into 3 is 9, 9 by 12। ठीक है। कंपेयर करो, which one is greater, since 9 by 12 is greater than 7 by 12। 9 by 12 किसका था हमारे पास, वैभव का। तो वैभव ने ज्यादा देर तक काम किया। ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देयरफॉर वैभव वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, वैभव ने ज्यादा देर तक काम किया। अब इसमें एक चीज और पूछा है कि किसने, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना ज्यादा काम किया। एंड बाय, तो यहाँ पे इसी के आगे लिखेंगे एंड बाय। तो हम माइनस करेंगे 9 by 12 माइनस 7 by 12, कितना आ गया, दैट इज माइनस करके 2 by 12। देखो 2 by 12, यहाँ पे 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 into 1 is 2 and 2 is 2 6 is 12, 1/6 आवर्स लॉन्गर। ठीक है, इतने घंटे ज्यादा काम किया है वैभव ने। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सब, क्लियर। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो मेरे से कभी भी, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इट क्लियर। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next video we will discuss exercise 2.2. Till then, take care. Bye bye. Thank you.